Good morning, all of you. Very good morning. Good morning, sir. Suprabhat. Is it audible, visible properly? Yes, sir. क्या चेंज लग रहा है? Bright लग. Okay. So, dear students, as we were just studying about theory base of accounting, and I think this is the last topic what I have completed with you people. So this, what is written on the board, that also we will use it. So today, since it is the first period, so definitely you would be you would be having the etiquette with full of energy, right? So students, we have started with the theory base of accounting. We have learned what is generally accepted accounting principle. We have learned how these principles came into the existence, who made this principle, and what the things are there. Okay, what are the general rules, general guidelines, and everything. We have also discussed how these accounting principles are divided in these two categories: accounting concepts and accounting conventions. Accounting concepts and accounting convention. What is accounting concepts? So accounting concepts are fundamental assumptions. जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमारा बिजनेस 100 साल, 50 साल, 500 साल, 1000 साल तक चलता रहेगा. This is what an assumption. Maybe practical, may not be practical, but we will assume like this. ठीक है? Businessman and the businessman will be two different entities. We will assume it and will prepare the financial statement. So the fundamental concepts are what? The assumptions. Fundamental assumption or fundamental propositions. Second, accounting conventions. Accounting conventions are what? Accounting conventions are those modifications, updates. Those modifications or updates which are been adopted for the need, for the requirement, for the better informations, and for as per the requirement of the business environment. Okay, so like this principles are made. मतलब शायद आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये जो हम चीजें बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग रूल्स है, वो कैसे बने, how this all came into the existence. रूल्स क्या है वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे. ठीक है, रूल्स तो बहुत सिंपल है. जैसे मैंने एक आपको रूल बताया, एक प्रिंसिपल बताया, है ना, कि हमारा बिजनेस, हम लोग ये मान के चलेंगे, है ना, विल अज्यूम दिस आवर बिजनेस विल गो फॉर इनफाइनाइट पीरियड. दिस इज द प्रिंसिपल. अब इसमें समझना क्या है? होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है समझने वाला, लेकिन आपको ये अज्यूम करना है. अज्यूम क्यों करना है? क्योंकि प्रिंसिपल ही इसी बेसिस पर बनेगा. कल हम लोग शायद किसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे, एंड देन आफ्टर it disconnected and the time was also over. If anyone can remind me, so we'll talk for the 2 minutes about it and we'll continue. आवाज आ रही है प्रॉपर? Whether I am audible? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों की भी आवाज बहुत अच्छी आ रही है और काफी properly I can hear you. Yes, please. So हम लोग कल किसी I think the discussion were going on with Smriti Kaur, and I don't know whether she is there in the class or not, but शायद उनके साथ में किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था. Anyway, इसमें स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है? If you have any questions, then let me know. Else, otherwise, we'll start with the topic. Yes, please. Any questions from anyone? Sir, actually, yesterday we had a discussion on the origin of GAAP. Like how did it came into existence? And at the time we were discussing, the class went off. Can you give a short recap of it? That how GAAP came into existence?
would you please come again, Yashika? थोड़ा सा लास्ट में आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाया लास्ट वाला पॉइंट. सर एक्चुअली yesterday जब हम डिस्कस कर रहे थे ना एग्जिस्टेंस ऑफ GAAP, तो डिस्कस करते टाइम क्लास बंद हो गई थी. So what was the last point what we were just talking about? Yes, we started discussing on existence and then the class went off, so I didn't understood how did it came into existence or origin. So I wanted to ask you that only, that how did it came into existence in accounts? How did GAAP? That because we discussed about ICAI and Devans also said about right, very correct. बहुत बढ़िया, शाबाश, well done. Thank you, Yashika. I appreciate you. तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, और याशिका ने शायद आपने बेटा ICAI के बारे में बोला था, और शायद देवांश ने बोला था किसके बारे में, ISB के बारे में, राइट? हाँ सर. हाँ, तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे. तो स्टूडेंट्स मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ISB, कल भी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि ISB या ISB या फिर ICAI, इनके जो रोल हैं वो बहुत बाद में आ रहे हैं. पहले रोल किनके आ रहे हैं? जिन्होंने इनिशियली उस चीज को स्टार्ट किया, जिसको इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया. भाई समझने की बात ये है कि स्टार्टिंग से थोड़ा ना BCCI रहा होगा, या स्टार्टिंग से थोड़ा ना ICCI रहा होगा. भाई पहले तो लोगों ने ऐसे ही कुछ भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया होगा कि कोई एक व्यक्ति होगा, बॉल्स भी नहीं होंगे, सीजन बॉल नहीं होंगे, टेनिस बॉल नहीं होंगे, उनके पास में जो भी चीजें रही होंगी उससे उन्होंने स्टार्ट किया होगा, है ना? या फिर सीजन बैट या ये नहीं रहे होंगे, जैसे उनको लगा होगा वैसे खेलना उन्होंने स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, फिर लोग उनसे जुड़ने लगे, फिर गेम्स के रूल डिसाइड होने लगे कि नहीं ये गेम अच्छा है, सब लोग खेलते हैं, तो चलो इसके रूल्स बनाते हैं अपन. फिर रूल्स बनने लगे, फिर धीरे धीरे और वो आगे बढ़ता गया. फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए, जो उसको उन फेडरेशन सेटअप हुए जो उन गेम्स को रेगुलेट करने लगे, है ना? धीरे धीरे ऐसे एक्सटेंड होते होते हर कंट्री का अपना एक फेडरेशन हो गया जो उस पर्टिकुलर गेम को रेगुलेट करता. फिर इसी तरीके से इंटरनेशनल फेडरेशन हो गया जो कि पूरे वर्ल्ड में उस गेम को रेगुलेट करने लगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच? टेल मी यस और नो. Yes sir. है ना? तो जिस तरीके से, है ना, जिस तरीके से जैसे वो क्रिकेट का गेम, क्या आपको लगता है कि आज से 100 साल पहले, या मतलब कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले जब क्रिकेट खेला गया होगा, पहली बार क्रिकेट खेला गया होगा सबसे पहली बार, तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आज है? ऐसा ही स्टेडियम होगा, ऐसे ही रूल्स फॉलो होते हैं? नहीं होगा 100%. और 100% नहीं होगा. और अगर हम और उसके पहले जाते तो शायद कुछ भी नहीं होगा इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने वो लगान मूवी में देखा था कि उन लोगों ने कैसे क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था, है ना? तो वैसे यही सारी कुछ चीजें हैं स्टूडेंट्स कि जब पहले स्टार्टिंग में जो अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंट्स बुक्स मेंटेन की जाती थी, तब इतने सारे सिस्टम्स नहीं थे. तब लोगों ने अपने नॉलेज और अपने ज्ञान या अपने इंटेलिजेंसेस के बेसिस पर उसको काम करना स्टार्ट किया. ग्रेजुअली उन्होंने स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली उन लोगों ने दूसरों लोगों को ट्रेन किया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा करना है. और जब धीरे धीरे ये सब चीजें प्रैक्टिस में आ गई, तो फिर इनके लिए कुछ इस तरह की स्टैट्यूटरी बॉडीज सेटअप हुई जो इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करने लगी कि नहीं इन सारे रूल्स को हम इस तरीके से फ्रेम आउट करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे. और सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनीज हो, चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर्स हो, चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वो सभी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को इस तरीके से मेंटेन करेंगे. फिर हर कंट्रीज ने अपने रूल्स बनाने शुरू किए, उन्होंने उसको फ्रेम आउट किया. फिर एक इंटरनेशनल बॉडी, जैसे क्रिकेट के लिए एक ICCI एक इंटरनेशनल बॉडी आई, तो वैसे ही अकाउंटिंग रूल्स के लिए भी एक इंटरनेशनल बॉडी आई, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो पहले थी IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, 1976. ठीक है. फिर 2000 मींस yes, in 2001 only it has been converted from IASC to IASB. ठीक है ना? So like this accounting rules came into the existence, है ना? ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स.
अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछने जाओगे कि भाई ये रूल्स वगैरह कैसे बने होंगे, किस तरीके से ये चीजें आई होंगी, then they would be having the lots of confusion. They have learned it, but how did it happen? How did it happen? What was the gradual process of development? That is the thing we are talking about. Hopefully I'm able to make you understand the in a right sense that what I wanted to. Shall we move ahead, students? Yashika, did you get the central idea what you were just thinking about? How did it came in, है ना? How did it came in existence and so many things. और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इसी पर अगर मान लीजिए होल्ड रहेंगे, then may be possible कि some students would get interest and some students would start getting bored कि अरे ये तो एक ही टॉपिक पर उलझ करके रह गए, इनकी ट्रेन यहीं पर इसी स्टेशन पे अटक गई, आगे ही नहीं बढ़ रही है ना? तो चलिए, बट एक चीज हम लोग अपने दिमाग में रखें कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स सभी लोगों ने अज्यूम करके बनाए, सभी लोगों ने अज्यूम करके बनाए। जैसे हम हमारे घर के, हमारी फैमिली के रूल्स बनाते हैं, जैसे हम हमारी सोसाइटी के रूल्स बनाते हैं, है ना, जैसे हम हमारी कंट्री के रूल्स बनाते हैं, तो उसी तरीके से ये जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उन लोगों ने पहले ये रूल्स बनाए, फिर बाद में अकाउंटिंग बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज आ गई, उन्होंने उन रूल्स को कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, और उसके लिए चेक पॉइंट्स बिठा दिए। चेक पॉइंट्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने कि यस, आपको ये चेक करना है कि सभी लोग इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं देन यू नीड टू टेक केयर अबाउट, ठीक है, लाइक दिस। नाउ जस्ट कम विद सम मोर क्वेश्चंस, हम डेफिनेटली उनके बारे में और बातें करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो फीचर्स आपको ऐसे लगेंगे कि ये सब तो, यही सब तो पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? लेट्स सी दिस फीचर्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेन मेड। डू आई रिक्वायर टू एक्सप्लेन? एनीवन टेल मी। Accounting principles are man-made. This we are talking about the features of accounting principles. Accounting principles are man-made. Yes, it is man-made because it is made by the human beings. And what is written there? Accounting principles are man-made. Therefore, they are the best possible suggestion based on the practical experiences. They are recommended for use by all enterprise to ensure uniformity and understandability. Accounting principles are flexible. Yes, it is man-made principle. It's flexible. It can be modified as per the need and the requirement of the business organizations for better information, for the best informations. Next, accounting principles are generally accepted. Yes, it is generally accepted. ये कोई कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में लिखे हुए रूल्स थोड़ा है, या फिर क्राइस्ट ने बाइबल में नहीं लिखे हैं। ये तो प्रैक्टिस से लोगों ने रूल्स बनाए हैं। Yes, this rule is to be followed. Simple. Just to maintain the understandability, just to maintain the comparability, reliability and the relevance. Okay, so these are the generally accepted rules. सभी लोगों ने उन rules को accept कर लिया, adopt कर लिया और उनको use करना start किया, so it became the rule, it became the principle. Government has declared, the statutory body of the government has declared it as a principle. Mandatory principle is to be followed. Likewise. Yes, necessity of accounting principle. I want anyone to read this. Yes, Yashika, would you read it? Do you have this reference book? Yes, sir, I have it. I have it. Okay, please read it. So just a second. Yes, please. Everyone listen it and try to understand it. Why we have needed this principle? What is the necessity of accounting principles? Please do understand this. Accounting information is better understood if it is prepared following the set of accounting principles uniformly. It means the same accounting principles are followed by entities in preparing the final accounts. Accounting information is meaningful and useful for users of accounting information, whether accounting records,
and financial statements are prepared following the generally accepted accounting principles. Okay. What you understood with this, Yashika? Sir, What is your it understanding with this? Yes, please. yes, it actually means that the accounting information which we get is much more useful if we prepare the records, if we prepare the books according to the accounting rules or accounting principles, and these may be the final accounts may be more meaningful and fruitful for the others to understand if they are following the rules properly and uniformly. Very good. Appreciable. Well done. Yes. Whether any other students will tell me if these rules are not followed, what will happen? Bhavya. Bhavya, can you tell me if you are there in the class? Bhavya. Sorry, not Bhavya. Can you tell me if these rules are not followed, then what will happen? Bhavya, Devansh, Khushi. Yes, Khushi. You just explain this. If you're there. Yes, sir. If these principles or this generally accepted accounting principles are not followed, or जो अभी याशिका ने बताया, have you listened it? आपने सुना ध्यान से जो याशिका ने भी पढ़ा और what she has described? Khushi, I'm talking to you. Yes, sir. I have listened. Okay, now just tell me what will happen if this will not followed accordingly, or if it would not be adhere with the guidelines, then what will happen? Yes, please. Okay, you just think over it. I'll come back to you. Okay, yes, Manan, Mohit, Natik, Naman, Nandana, Rhythm. My questions to everyone, what will happen if these rules will not be followed? अगर इन rules को follow नहीं किया जाता है, अगर इन rules को as it is जैसा बताया गया है इस तरीके से अगर इनको follow up नहीं किया जाता है, so what will happen? सर हर किसी के अलग रूल्स होंगे तो कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा अच्छे से। Very good, appreciable. है ना मुझे one boy is, I can see one boy standing with the Spider-Man. May I know the name? सर मोहित। Mohit, appreciable. Mohit Rajoria या मोहित चौधरी? सर चौधरी। Yes, Mohit Chaudhary. Appreciable. Very good. Comparison नहीं हो पाएगा, and the comparison is a very very important term. और क्या हो सकता, और क्या problems हो सकती है? Mohit and all other students. जल्दी से बताओ. इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होगी ना अगर रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो. Yes, very good. फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी या किसी की प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमें कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो हम नहीं कर पाएंगे अगर अकाउंट्स बैलेंस नहीं है तो. Yes, very good. देखिए एक चीज हम सभी को समझना होगी स्टूडेंट्स कि बिजनेस कोई भी हो सकता है. प्लीज डू अंडरस्टैंड, है ना. प्लीज एवरीवन लिसन इट वेरी केयरफुली. देखिए ये चीजें जब आप लोग इस तरीके से रिप्लाई करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप कितने प्रॉपर तरीके से इन चीजों को समझ पा रहे हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट टू दिस टू स्टूडेंट्स याशिका एंड मोहित कि इन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहा है. बाकी लोग अगर रिप्लाई करेंगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा कि कहाँ पर कोई चीज, कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है. नाउ द थिंग्स आर व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी क्लियर. देखिए बिजनेस कोई सा भी हो, है ना, XYZ बिजनेस, दैट डजंट मैटर, लेकिन हर बिजनेस से हर बिजनेसमैन या उसके स्टेक होल्डर को सिमिलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. एम आई करेक्ट स्टूडेंट? बहुत ज्यादा अलग इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती. चाहे हमारा कोई सा भी बिजनेस हो, हमारा कॉटन का बिजनेस हो, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो, या हमारा ट्रक एंड ट्रेलर्स का बिजनेस हो, हमारा टिम्बर का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, हमें बिजनेस से कुछ एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है प्राइमरी लेवल पर. सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को कितना लॉस है, सेल्स कितना है, परचेस कितना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यूज कितने हैं, बिजनेस की एसेट्स कितनी हैं,
बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है, लोन कितना हमने ले रखा है, कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है, बिजनेस या ओनर की कैपिटल कितनी है. दीज आर द सम इंफॉर्मेशन व्हाट एवरीवन वांट. एम आई करेक्ट? इफ आई एम करेक्ट टेल Yes. यस. थैंक यू मोहित, थैंक यू. सो इससे कोई मतलब नहीं कि हमारा व्हाट बिजनेस वी आर डूइंग or what is the nature of business or what is the scale of business. Well, scale definitely matter, है ना, but what is the nature of business or in what product or in services we are dealing with. But definitely everyone is needed some similar common information. Please do understand, जब हमें common information चाहिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस करने वाले को भी वही इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, एक टिम्बर के बिजनेस करने वाले को भी वही इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, एक ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करने वाले को भी सिमिलर इंफॉर्मेशन चाहिए. हर किसी को सेम इंफॉर्मेशन चाहिए. तो हमें जब सेम इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सेम रूल ऑफ अकाउंट्स will be required to follow, ना, because those rules are prepared in such a way so that what the most relevant informations can be obtained from the book of account. जो relevant information है वो relevant information हमें मिल सके. ठीक है. अब अगर मान लीजिए उसमें हमने कुछ ऐसे रूल्स बेस्ड ऑन अवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने कुछ ऐसे रूल्स फॉलो किए हैं या फिर इस तरीके से बनाए हैं उनको कि हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं लेकिन बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहे, तो वो हमारे लिए तो काम के हैं लेकिन दूसरों के लिए फिर वो स्क्रैप हो जाएंगे. होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो छोटा सा बॉक्स दे रखा है रेफरेंस में कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये बहुत जरूरी है. Because the business activities cannot be done in the isolation. Business activities cannot be done in the isolation. Business करने के लिए you think about कि हमने कहीं अलास्का के जंगलों में जाकर कहीं पर एक बहुत बड़ा सा शोरूम स्टार्ट किया या फिर कोई बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो think about what will happen. हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, एम्प्लॉइज कहाँ से आएंगे, कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, है ना, so many things. So business cannot be done in the isolation. Business needs stakeholders, society, ओनर, एम्प्लॉई, कस्टमर, गवर्नमेंट, ठीक है, रिसर्चर्स, मार्केटिंग पीपल, सो मेनी पीपल्स आर नीडेड. और हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो स्टेटमेंट इन सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें इन सभी से मतलब है, इन सभी से काम है. होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाई द कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नीडेड. कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नीडेड. जैसे एक फैमिली के लिए कॉमन रूल्स होते हैं कि सभी लोग फॉलो करेंगे. रात को 10 बजे के बाद में कोई टीवी नहीं देखेगा. ऑब्वियसली एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है ना. तो जिस तरीके से कॉमन रूल्स होते हैं सभी के लिए, सो द कॉमन रूल्स आर नीडेड. कॉमन रूल्स आर नीडेड फॉर एनी प्रोफेशंस. इवन द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द क्या टाइटल है वो, कॉमन रूल्स फॉर द सिटीजन. That doesn't matter whether you are Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, Parsi or whatever, but some common rules should be there, है ना. तो उससे क्या होती है, बहुत सारी यूनिफॉर्मिटीज आती है. एंड यूनिफॉर्मिटीज वेरी मच नीडेड फॉर व्हाट पर्पस, स्पेशली फॉर 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस किया. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन चाहिए सभी को मिलेगी. रिलायबिलिटी, हमें ट्रस्ट आता है उन चीजों के ऊपर, हमें विश्वास होता है कि नहीं मैं भी रूल फॉलो कर रहा हूं, ये भी रूल फॉलो कर रहे हैं. मतलब जो चीजें हैं, जब रूल सभी को मालूम होते हैं तो कोई किसी को मिसगाइड नहीं कर सकता है, मिसलीड नहीं कर सकता है. थर्ड, कंपेरेबिलिटी. वी आर एबल टू कंपेयर. जैसा मोहित ने बताया कि अगर मान लीजिए सभी लोग एक जैसे रूल्स बनाएंगे तो हम लोग अकाउंट्स को कंपेयर कर पाएंगे, कंपैरिजन हो पाएगा. ठीक है. एंड कंपैरिजन इज द इजीएस्ट वे ऑफ एनालिसिस. हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की मेथड कौन कौन सी होती है, तो उसमें सबसे पहली, सबसे इजी और सबसे रिलायबल मेथड आती है कंपैरिजन, है ना. कंपैरिजन इज व्हाट, वन ऑफ द टूल टू एनालाइज. भाई आप अपने 5 सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, ये पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, अपने यूनिट टेस्ट के मार्क्स देखोगे, अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देखोगे. हाँ, मुझे अकाउंट में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बिजनेस में भी अच्छा आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में थोड़े से कम आ रहे हैं, और इंग्लिश में भी ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में भी ठीक है, इकोनॉमिक्स में कम है, मतलब इकोनॉमिक्स में काम करना है. व्हाट यू हैव डन, कंपैरिजन. आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, नाउ हाउ यू आर डूइंग, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट कंपेयर कि अकाउंट्स में मोना को कितने आए हैं, सोना को कितने आए हैं, है ना, रवि को कितने आए हैं, मोहन को कितने आए हैं, मुझे कितने आए हैं. विल डू द कंपैरिजन. सो कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट to analyze. Okay. And the last, understandability.
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, जब आप चाहते हो कि लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएं, लोग चाहते हैं कि आई मीन यू वांट दिस, द पीपल्स आर रियली इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस, तो आपके अकाउंट्स उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? ये तो कुछ वैसे ही हो रहा है कि आपके सामने जो सभी लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी को उर्दू का ज्ञान नहीं है और उनके सामने आप उर्दू में लंबी लंबी तकरीरें दे रहे हो। तकरीर मतलब भाषण। ठीक है, सो किसी को उर्दू नहीं आती लेकिन आप उर्दू में तकरीर दे रहे हो। ठीक है, या किसी को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश में आप लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे हो। तो जब तक उनको समझ में नहीं आएगा वो डिसीजंस कैसे लेंगे? समझ में आ गई बात सभी को स्टूडेंट्स? अब अपन इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म, आई मीन इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। यस प्लीज। ऑल द रिस्पेक्टेबल 12 स्टूडेंट्स, भव्य, देवांश, खुशी, कृष्णा, मनन, मोहित, नैतिक, नमन, नंदना, रिदम एंड याशिका. I used to forget the name of those students who don't interact during the class. मैं कई बार भूल जाता हूं उनके नाम। हाँ, अब तो पर मोहित की डीपी से मुझे पहचान में आ जाएगा कि यस इज मोहित नाउ। याशिका, ठीक है। सो कीप इंटरेक्टिंग एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी वुड बी स्टडिंग इन सच वे, दिस वे। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन इट इज। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? नो सर। ओके ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसके आगे ये जो रूल्स दे रखे हैं बेटा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट। देखो क्या लिखा हुआ, अजम्पशन और कंसेप्ट, ये पढ़ने वाले हैं। ये बहुत सिंपल है, ये दिख रहे हैं इतने लंबे और ऐसे डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन ये बहुत इजी है। अगर ये हमें समझ में आ गया है तो ये बहुत इजी है ना। तो ये हम लोग आज से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट आई विल जस्ट टेल यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। Now students, please do understand, please listen to me. I'm not going to start it from today, है ना। This going concern assumptions, consistency assumptions, then accrual assumptions, accounting entity or business entity principle, money measurement principle, accounting period principle, full disclosure principle, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 दे रखे हैं इनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। पेज नंबर 3.3, the page number is 3.3. Got it? Dear students, ये कंटेंट एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, और ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये हर बुक में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा होगा, बिकॉज दिस इज द सोल ऑफ अकाउंटेंसी। जिनको ये समझ में नहीं आएंगे उनको अकाउंटेंसी कभी समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, सो एंड जैसे काफी सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने अकाउंट्स को पढ़ा नहीं है, जिन्होंने कॉमर्स नहीं स्टडी किया है, लेकिन डे टू डे लाइफ में तो कॉमर्स के साथ में डील करना ही पड़ता है। आप चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपको अल्टीमेटली इन सारी चीजों के साथ तो डील करना ही पड़ेगा। आप चाहे लॉयर हो चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपको बैंकिंग इश्यूज में तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत तो डेबिट क्रेडिट समझना ही पड़ेगा। दैट डजंट मैटर वेदर यू हैव स्टडीड द कॉमर्स और नॉट। तो कई बार क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होता है उन्हें बहुत सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उन्हें पता नहीं होते हैं। अकाउंटिंग के ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उन्हें मालूम नहीं होते हैं। तो अब when they became the professionals, when they became the earning member or earner, है ना, तो भले ही उन्होंने अकाउंट से कॉमर्स नहीं पढ़ रखा है, लेकिन because it's a part of this is one of the very important part of our life, है ना। हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें इकोनॉमी में, हमें रुपए पैसे में डील करना पड़ता है। नॉट अ सिंगल पर्सन इज देयर जो इसमें डील नहीं करता है, सभी को करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको, आप चाहें या नहीं चाहें, आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो उन लोगों को उन्हें प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लेकर के अवेयर नहीं होते हैं, उन्होंने पढ़ नहीं रखा होता है, उनके सब्जेक्ट नहीं था, हम गलत भी नहीं बोलते हैं उनको। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। स्टार्टिंग के 3 प्रिंसिपल्स जो दे रखे हैं स्टूडेंट्स, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशंस and accrual assumption, these 3 are called fundamental assumptions. Please do understand, these 3 are only called fundamental assumptions: going concern,
गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब यही हो रहा है कि हम जब अकाउंट्स बनाते हैं, सो वी अज्यूम दैट द बिजनेस विल गो फॉर इनफिनाइट पीरियड। बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, वैसे ही कंसिस्टेंसी assumptions, कंसिस्टेंसी मीन टू से व्हेन यू हैव अडॉप्टेड अ प्रिंसिपल वंस और अ मेथड वंस और अ प्रोसेस वंस, यू हैव टू फॉलो। इट शुड नॉट हैपन कि आपने इस रूल को इस साल तो फॉलो किया और अगले साल चेंज कर दिया, फिर अगले साल फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से आपने कोई दूसरा रूल उठा लिया, फिर उसके बाद में आपने और कोई सा रूल उठा लिया। तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, देयर शुड बी द कंसिस्टेंसी। दिस इज आल्सो वन फंडामेंटल प्रिंसिपल। एंड वन मोर इज द एक्रूअल अजम्पशंस, जो आपको शायद याद होगा, अपन लोगों ने बात किया था, है ना, दैट आई हैव रेज्ड, कि इस साल के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमने पे किए हैं या नहीं किए हैं, वी हैव टू रिकॉर्ड। और इस साल की कोई इनकम हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई है, बट वी हैव टू रिकॉर्ड। ठीक है, वी विल स्टडी इन द डिटेल, बट मैं बता रहा हूं आपको ताकि अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो दिस थ्री आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब, in world no organization is there who can avoid this fundamental principles while maintaining the financial statement. So these are the fundamental that is to be accepted without any convention. इसमें कोई modification allowed नहीं है। इसके बाद में आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर। तो ये करीब कितने प्रिंसिपल्स दे रखे हैं आपकी बुक में? 13, 14 कितने दिए हुए हैं यहाँ पर? 11 and 3 टोटल 14 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इन 14 प्रिंसिपल्स को कल स्टडी करेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। अगर ये समझ में आया है तो ये समझ में आ जाएंगे, नहीं तो आप यही पूछते रहोगे कि ऐसा क्यों करेंगे सर, और सर के पास भी कोई कारण नहीं है। सर के पास जो कारण है वो कारण बता दिया सर ने। ओके, यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? यस प्लीज, इज देयर एनी क्वेरी? हेलो? नो सर। ठीक है, तो दिस इज योर असाइनमेंट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड द क्लास। ठीक है, दिस इज असाइनमेंट कि आप इन प्रिंसिपल्स को स्टडी करें। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप YouTube पर भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, बुक में से भी पढ़ सकते हो, है ना। आप जैसे ही YouTube पर या फिर गूगल पर लिखोगे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एंड देयर वुड बी नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हु वुड बी एक्सप्लेनिंग इन देयर एज पर देयर नॉलेज एंड विजडम। ठीक है, so this will help you to understand this all principle in a better way. Fine, thank you so much everyone. Let's conclude the class, but bye. Thank you.